بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں سے معتبانہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل ہی نہ بھولیں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی اس طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہے۔ میرے محترم ناظرین اور میرے پیارے دوستوں، پیش خدمت ہے۔ بہت دنوں کا ذکر ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ بڑا ظالم اور دل کا سخت تھا۔ وہ ذرا سی بات پر لوگوں کو بڑی سخت سزائیں دیا کرتا اور اکثر بے گناہوں کو جان سے مروا ڈالتا۔ اس بادشاہ کی حکومت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے شہروں پر اس کے حاکم مقرر تھے جو بادشاہ کی مرضی کے مطابق سارا انتظام کرتے تھے۔ لاکھوں آدمی اس کی رعیت میں تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ بادشاہ کے حکم کو ٹال سکے۔ سب پر اس کا خوف چھایا ہوا تھا۔ لوگوں کی یہ مجبوری اور ڈر دیکھ کر بادشاہ کا ظلم اور بڑھتا رہا، یہاں تک کہ لوگوں کو ستاتے اسے یہ خیال رہنے لگا کہ میں کوئی برائی نہیں کر رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں سب کچھ ٹھیک ہے، بلکہ اصل میں مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں۔ اگر حکومت ساری کی ساری اکیلے اسی بادشاہ پر رہتی تو اس کے ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے بہت جلد بادشاہ کا سارا کارخانہ الٹ پلٹ ہو جاتا، لوگوں میں لوٹ مار اور بے چینی بے حد بڑھ جاتی۔ اس لیے کہ حکومت انصاف کے بغیر باقی نہیں رہتی، اور جہاں انصاف کی جگہ بے انصافی اور بد امنی کو ملے لوگ بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں کی قسمت اچھی تھی جو ایسے ظالم بادشاہ کا وزیر بڑا انصاف پسند اور رحم دل تھا۔ وہ بڑا عقل مند اور سمجھدار تھا، ہمیشہ رعایا کو آرام پہنچانے اور انہیں دشمنوں سے بچانے کی فکر میں لگا رہتا تھا۔ بادشاہ سے جو ظلم کی باتیں ہوتی یہ اپنی ہوشیاری اور رحم دلی سے انہیں ٹھیک کر لیتا اور لوگ اس کی وجہ سے نقصان سے محفوظ رہتے۔ اس نیک وزیر کا نام تھا عاقل۔ بادشاہ اس وزیر کی عقل اور کارگزاری سے واقف تھا اور یہ جانتا تھا کہ ایسی اچھی سمجھ والے لوگ بہت کم اور بڑی مشکل سے ملتے ہیں، اس لیے وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ وزیر جو رائے دیتا اس کے خلاف نہ کرتا، اسے اکثر قیمتی تحفے اور انعام دیا کرتا۔ رعایا بھی وزیر کو دل سے چاہتی تھی اور اس کے انصاف، نیک دلی اور خدا ترسی کی بجائے تعریف کرتی تھی۔ اس بادشاہ کے آخری زمانے میں اس کی عقل میں خرابی آ گئی۔ وہ پہلے جتنا ظلم کرتا تھا اس سے بہت زیادہ کرنے لگا۔ غصہ کرنے اور ذرا سی باتوں میں لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگنے کی عادت بہت بڑھ گئی۔ وزیر ان باتوں کو دیکھتے دیکھتے بیزار ہو گیا اور اس کا جی نہ چاہا کہ زیادہ دنوں تک بادشاہ کا ساتھ دیں۔ عاقل نے بادشاہ کی حرکتوں پر غور کیا تو اسے ان کا انجام بہت برا معلوم ہوا۔ بادشاہ نے ظلم کرنے کے جو نئے قاعدے قانون بنائے تھے ان کا نتیجہ اچھا نہ تھا، اس لیے اس نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ ایسی باتوں سے جو خرابیاں ہوں گی ان کے انجام سے بادشاہ کو اچھی طرح واقف کر دیں۔ وزیر بادشاہ کے ظلم کے ارادے پورے کرنے میں کمی کرتا اور ایسی باتوں سے روکتا جو بادشاہ کو بہت برا معلوم ہوتا۔ تھوڑے ہی دن بعد بادشاہ نے عاقل وزیر سے ناراض ہو کر اسے دھمکی دی کہ میرے حکم پر چلنا اور آنکھیں بند کر کے میری مرضی پوری کرنا تمہارا پہلا فرض ہے۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو میرے سخت غصے اور خوفناک سزا سے نہ بچ سکو گے۔ وزیر اپنے دل میں اچھی طرح سمجھتا تھا کہ بادشاہ نے جو دھمکی دی ہے وہ اسے پورا کرنے میں ہرگز کمی نہ کرے گا۔ کسی پر ترس کھانا اور رحم کرنا تو وہ جانتا ہی نہیں۔ جب میں اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالوں گا وہ ضرور مجھے سختی کے ساتھ سزا دے گا۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ اگر میں یوں ہی بادشاہ کی مرضی پوری کر کے اس کے ظلموں میں حصہ لیتا رہا تو میری پوری زندگی بے چینی اور فکر میں گزرے گی۔ لوگوں کی بے گناہی اور ناحق کی پریشانی کا خیال ہر وقت دل میں کھٹکتا رہے گا۔ اس لیے اس نے اپنے جی میں یہ بات ٹھان لی کہ کچھ بھی ہو میں اپنا فرض ضرور ادا کیے جاؤں گا، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ وزیر کے طریقوں میں فرق نہ آیا اور وہ بادشاہ کے ظلموں کو روکنے کے لیے جو کرتا تھا کیے گیا۔ تو ایک دن بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے سپاہیوں کو پکارا جو فوراً حاضر ہو گئے اور اپنے وزیر کی طرف منہ کر کے کہا، اب یہ تمہیں آخری موقع اور دیتا ہوں، اگر تم نے اس کی بھی قدر نہ کی تو ایسا وقت پھر کبھی نہ آئے گا۔ اگر تم اپنے اسی طریقے پر قائم رہے تو یاد رکھو موت تمہارے انتظار میں کھڑی ہے، اس لیے صاف کہہ دو میری مرضی پر چلنا منظور ہے یا نہیں۔ وزیر نے پورے صبر اور ہمت کے ساتھ سر ہلایا اور اسی طرح بادشاہ کے صاف کہہ دیا کہ منظور نہیں۔ بادشاہ نے گرج کر سپاہیوں سے کہا، ادھر آؤ۔
इसे पकड़कर हिलाकत के बुर्ज में सबसे ऊपर की जगह कैद कर दो, जहां यह झुलसी हुई धूप में भूख प्यास से तड़प तड़प कर खुद ही मर जाएगा। सिपाहियों की परेशानी उस वक्त देखने के काबिल थी। वजीर के मर्तबा के अलावा उसकी रहम दिली और इंसाफ पसंदी का सभी के दिल पर असर था। वह जानते थे कि कल तक यही वजीर बरसों से बादशाह के नाम पर हुक्म काम जारी करता रहा और शहर में बादशाह के बाद यही सबसे बड़ा आदमी समझा जाता था। इन बातों को सोचकर सिपाहियों को हिम्मत ना पड़ती थी कि वजीर पर हाथ डाले। वजीर उनकी यह हालत समझ गया और उसने उन्हें इस परेशानी से निकलने के लिए बड़ी नरमी के साथ उनसे कहा, मेरे दोस्तों और अजीज़ों, डरने घबराने की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस काम के लिए तुम्हें तकलीफ न दूंगा। यह लो, मैं अपने आका के हुक्म की तामील के लिए खुद ही हिलाकत के बुर्ज की तरफ बढ़ जाता हूँ। अब वजीर बादशाह के कमरे से निकलकर सिपाहियों के आगे हो लिया और बड़े सुकून और इत्मीनान से सर उठाए हुए कदम बढ़ाता रहा। उस वक्त यह बड़ा खुश था कि उसने जो कुछ अपना फर्ज था अदा कर दिया, जान जाने की जरा परवाह न की। आकिल वजीर जानता था कि हिलाकत का बुर्ज कैसी खौफनाक जगह है। उसे मालूम था कि उस मकाम पर जितने आदमी भी कैद किए गए उनमें से एक भी जिंदा न बचा। उसे यकीन आ गया कि अब उसकी मौत करीब आ पहुंची, यहाँ से मरकर ही निकलना होगा। जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं, फिर भी उसने कोई बेकरारी और घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि अपने आप को बड़े सब्र के साथ खुदा के हवाले कर दिया कि उसे जो कुछ मंजूर होगा ठीक होगा। वजीर इस बुर्ज में पहुंचा तो बहुत देर तक आने वाली मुसीबतों पर गौर करता रहा। साथ ही यह भी सोचा कि अगर कोई अच्छी तदबीर समझ में आ जाए तो यहाँ से निकल भागे। वह इस कोशिश में कामयाब हुआ और जैसी तदबीर वह चाहता था समझ में आ गई, मगर मुश्किल यह थी कि वहाँ कोई ऐसा दोस्त न था जिस पर वह भरोसा कर सकता। सिर्फ उसकी बीवी ही ऐसी थी जो इस काम में मदद दे सकती थी। अभी वह इसी फिक्र में था कि क्या करे। इतने में एक सिपाही ने, जिसे वजीर की मुसीबत पर बड़ा तरस आता था, उससे कहा कि आप कहें तो मैं आपकी बीवी को इन सब बातों की खबर कर दूं। वजीर ने उसका शुक्रिया अदा किया और वह मौका पाकर वजीर के यहाँ पहुंचा और उसकी बीवी को सारे हालात की खबर दी। जब रात काफ़ी गुजर गई और अंधेरा खूब फैल गया तो वजीर की बीवी दबे पांव छुपती छुपाती बुर्ज के नीचे पहुंची। वजीर तो इसके इंतजार ही में था। उसे देखते ही सलाम किया। बीवी ने सलाम का जवाब दिया, फिर गमगीन आवाज़ में आहिस्ता से कहा, क्या मुझसे आपकी कोई खिदमत नहीं हो सकती? वजीर ने धीरे से जवाब दिया, खूब हो सकती है, मगर असल काम कहने से पहले मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि सबसे पहले तो सब्र से काम लो और खुदा पर दिल से भरोसा करो ताकि हमारी यह कोशिश कामयाब हो। नाउमीदों को हरगिज़ दिल में न आने दो, क्योंकि मायूसी से आदमी का दिल टूट जाता है और फिर बनाए नहीं बनती, और सब्र कामयाबी की कुंजी है। बीवी ने फिर आहिस्ता से कहा, आप जो चाहें हुक्म दें, मैं गौर से सुन रही हूँ। वजीर ने जवाब दिया, बहुत जल्द घर वापस जाओ और ये चीज़ें साथ लेकर आओ। एक बड़ा भौंरा, 60 गज निहायत बनावट का रेशमी धागा, 60 गज बहुत बारीक सूती धागा जो बहुत मजबूत हो, और 60 गज मोटी बनावट का धागा, एक निहायत मजबूत मोटी रस्सी जो बगैर टूटे हुए मेरे वजन का बोझ संभाल सके। छठी और आखिरी चीज़ थोड़ा सा शहद है, लेकिन यह भी बहुत ज़रूरी है। जब तक वजीर अपनी बीवी को यह हिदायतें करता रहा वह बड़े गौर से कान लगाए सुनती रही। जब वह चुप हुआ तो बीवी ने वजीर की कही हुई एक एक बात दोहराकर उसे सुनाई ताकि अच्छी तरह यकीन हो जाए कि उसने सब बातें ठीक तरह से सुन ली है। उस वक्त वह यह पूछ बैठी कि भौंरा किस लिए मांगा है और शहद से क्या फ़ायदा होगा। इस पर वजीर ने जवाब दिया, मेरी अजीज़ बेगम, बेफ़ायदा बातों में एक लम्हा भी ज़ाय न करो। वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। फ़ौरन घर जाओ और मेरी मांगी हुई हर एक चीज़ पूरी एहतियात के साथ ले आओ। इन चीज़ों का फ़ायदा तुम्हें बाद में मालूम हो जाएगा। मेरे लिए तो यही तकलीफ़ कुछ कम नहीं कि अभी एक दिन धूप में भूखा प्यासा रहना पड़ेगा और खुदा जाने क्या क्या होगा। वजीर की बीवी ने वक्त बिल्कुल ज़ाय न किया और उसी वक्त जल्दी जल्दी अपने घर रवाना हो गई। वजीर गरीब उसी जगह बुर्ज पर खड़ा बीवी की वापसी का इंतजार करता रहा। उसे तरह तरह के शुबे सता रहे थे और अपने दिल में डर रहा था कि अगर इस काम में ज़रा भी चूक हो गई तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी और दोनों में से एक की या दोनों की जान जाएगी। वजीर की बीवी सूरज निकलने से बहुत पहले बुर्ज के नीचे फिर आ पहुंची। वजीर ने जैसे उसकी मोहब्बत भरी आवाज़ सुनी तो उसे फ़ौरन जवाब दिया। वक्त बहुत कम रह गया था, इसलिए वह अपनी बीवी से फौरी तदबीर एक साथ बयान न कर सका। एक एक बात कहता रहा। पहले उसने कहा कि भावरे को निहायत बारीक बनावट के साथ एक धागे से बांध दो।
फिर भंवरे की नाक पर शहद चपर दो। जब बीवी ये काम कर चुकी तो वजीर ने कहा, भंवरे को बुर्ज के दीवार पर रख दो और उसका सर ऊपर की तरफ कर दो। भंवरा यह न जानेगा कि शहद उसकी नाक पर चपड़ी हुई है, बू सूंघता रहेगा और यह समझेगा कि दीवार के ऊपर शहद की मक्खी का छत्ता होगा। वह वहां तक पहुंचने के लिए लालच में बराबर ऊपर की तरफ चढ़ता रहेगा, यहाँ तक कि बुर्ज की चोटी पर आ जाएगा। बीवी ने कहा, ठीक है। बीवी ने बिल्कुल वैसा ही किया। भंवरे की नाक पर शहद चपड़ दिया और उसके साथ धागा बांध दिया। भंवरा बुर्ज की दीवार पर चढ़ता हुआ ऊपर चला तो बीवी ने उसकी खबर वजीर को दी। जब वजीर ने कहा, भंवरा जिस धागे से बंधा हुआ है उसे ढील देती जाओ ताकि वह आसानी से ऊपर जा सके, और हाँ खबरदार, धागे का दूसरा सिरा हाथ से न छोड़ देना, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा और यहाँ से छूटने की उम्मीद जाती रहेगी। भंवरा धीरे धीरे चढ़ता हुआ बुर्ज के ऊपर जा पहुँचा। ठीक उसी वक्त और सुबह की रोशनी फैलती हुई मालूम हुई। इस कामयाबी से वजीर खुशी से फूला न समाया, मगर उसने किसी बेकार बात में वक्त ज़ाय न किया और फौरन भंवरे को अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर बीवी से कहा, हाँ शाबाश, अब जल्दी से सूती धागे का सिरा रेशमी धागे से बांध दो। जब वह बांध चुकी तो वजीर ने रेशमी धागा आहिस्ता आहिस्ता खींचा, यहाँ तक कि सूती धागे का सिरा हाथ में आ गया। अब वजीर ने कहा, अब मोटे धागे का सिरा सूती धागे से बांधो। उसने ऐसा ही किया। वजीर ने उसे भी खींचकर मोटे धागे का सिरा अपने हाथ में ले लिया। अब वजीर की बीवी शौहर का मतलब अच्छी तरह समझ गई थी, इसलिए उसने वजीर से कहे बगैर मोटी डोरी के सिरे से रस्सी बांध दी। वजीर ने उसे जल्दी से ऊपर खींच लिया। जब इस तरीके से मजबूत रस्सी उसके हाथ में आ गई और कैद की मुसीबत से छूटने का जरिया काबू में आया तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। मगर अब भी उसने अपना काम बराबर जारी रखा। रस्सी को बुर्ज की चोटी से बांधकर पूरी ताकत से हिलाया ताकि उसकी मजबूती का इत्मीनान हो जाए। इसके बाद रस्सी पकड़कर वहीं लटक गया। जब रस्सी की मजबूती और बनावट का दोबारा यकीन हो गया तो उसने रस्सी को पकड़कर उसके सहारे नीचे उतरना शुरू किया, यहाँ तक कि रस्सी पकड़े पकड़े वह जमीन पर आ पहुंचा। अब वह फिर पहले की तरह आजाद था। बीवी उसे आते देखकर खुशी से बेचैन हो गई। फिर ये दोनों खूब गले मिले। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी बड़ी तेजी से एक पहाड़ के करीब एक गार की तरफ चल खड़े हुए ताकि दिन वहां गुजारे, और जब रात आए तो फिर भागते भागते किसी दूर शहर में जा बसे और वहां रहने लगे। उधर जालिम बादशाह पर जो कुछ गुजरी वह एक ऐसा वाकया है जिस पर मुश्किल ही से यकीन आ सकता है। बादशाह ने वजीर को सजा तो दे दी, मगर वजीर को सजा देने के बाद उसे गमों और सदमों ने चारों तरफ से घेर लिया। वह बहुत पछताया कि मैंने नाहक इतनी जल्दी की। अब दुश्मन जो हर तरफ से घेरे हुए हैं उन्हें किसी तरह से दफा किया जाए, और इतने होशियार और कारगुजारी को खो देने के बाद मुल्क के इतने बहुत से काम कैसे होंगे। वह इन बातों का जितना सोचता था उतनी ही परेशानी बढ़ जाती। इसी फिक्र में उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही आंख लगी तो उसने ख्वाब देखा कि एक छोटा सा भंवरा एक दीवार पर चढ़ रहा है और वह रेशम और सूत के लंबे लंबे धागों और रस्सियों में लिपटा हुआ है। फिर उसने देखा कि भंवरा चढ़ते चढ़ते दीवार पर ऊपर जा पहुंचा। उसने उन रस्सियों को खोलना और फैलाना शुरू किया। उनके खोलने से एक खुशखत फिक्रा बन गया। उसे पढ़ा तो यह लिखा था, इंसाफ बादशाही की बुनियाद है। फिर अपने सामने देखा तो कैदी वजीर को अपने तख्त पर बैठा हुआ पाया। इस ख्वाब से बादशाह इतना घबराया कि आंख खुल गई। ख्वाब को याद करके बड़ा परेशान हुआ। घबराकर पहरा वालों को आवाज़ दी और हुक्म दिया कि हिलाकत का बुर्ज खोला जाए। जैसे ही बुर्ज का दरवाज़ा खुला, बादशाह बड़ी तेज़ी से उसकी चोटी की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसे वही भंवरा नजर आया जिसे वह ख्वाब में देख चुका था। अब तो मारे दहशत के उसके हवास जाते रहे। पाँव रखता कहीं था, पड़ता कहीं और था। जब उसे ख्याल आया कि कैदी वजीर को तलाश किया जाए, बुर्ज का कोना कोना छान मारा, लेकिन वजीर का कहीं पता न लगा। वजीर की तरफ से ध्यान हटा तो क्या देखता है कि एक रस्सी बुर्ज की चोटी से बंधी हुई नीचे की तरफ लटक रही है। फौरन बगैर सोचे समझे बुर्ज के किंगर की तरफ झपटा ताकि इस वाकया का ज़्यादा से ज़्यादा खोज लगा सके। ज़रा और कदम आगे बढ़ाया था कि पाँव फिसला और वह बुर्ज पर से गिरकर जमीन पर आ गिरा। नीचे पहुंचकर उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई। लोगों ने देखा तो लाश इतनी बिगड़ चुकी थी कि पहचानना मुश्किल हो गया। यह खबर ऐसी थी कि बिजली की तरह तेजी के साथ मुल्क के इस सिरे से उस सिरे तक फैल गई।
हर तरफ खुशी मनाई गई। लोगों ने शुक्र के सजदे अदा किए कि खुदा ने बड़े जालिम और मूजी बादशाह से निजात दिलाई। जिसने सुना इत्मीनान का सांस लिया। उसके बाद यह फिक्र हुई कि अब बादशाह किसे बनाया जाए। फौरन वजीर आकिल का ख्याल आया और लोग हर तरफ दौड़े कि जहां पता मिल सके तलाश करके उसे ले आए। इधर तो वजीर की तलाश जारी थी और उधर रियाया महल के चारों तरफ जमा होकर नारे लगा रहे थे, वजीर आकिल बादशाह है, सुल्तान आकिल जिंदाबाद, बादशाह आकिल जिंदाबाद। उस वक्त लोग खुशी से दीवाने हुए जा रहे थे और बार बार कह रहे थे, हमारे बादशाह को जल्द लाओ, हम वजीर आकिल के सिवा किसी की बादशाही नहीं चाहते हैं। यह देखकर सल्तनत के बड़े बड़े अमीरों ने वजीर आकिल के बादशाह होने का ऐलान कर दिया और लोगों को इत्मीनान दिलाया कि बादशाह सलामत बहुत जल्द आने वाले हैं। लोग परेशान न हो और सब्र के साथ उनकी खैरियत से आने की दुआ करें। उधर वजीर हिलाकत के बुर्ज से निजात पाकर अपनी वफादार बीबी के साथ जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ एक गार में जा पहुंचा और वहां थोड़ी देर आराम करने के बाद इधर उधर से जंगल के फल जमा किए और दोनों ने मिलकर सब्र शुक्र के साथ खाए। फिर पास ही के एक चश्मे से जी भर के पानी पिया और दोनों वहीं लेट गए। थके हुए थे ही खूब गहरी नींद आई और कई घंटों तक सोते रहे। वजीर ने ख्वाब में देखा कि वह एक बड़े खुशनुमा और सरसब्ज बाग में टहल रहे हैं जिसमें खुश आवाज़ परिंदे मीठे मीठे गीत गा रहे हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। बाग के बीच में एक सुनहरा तख्त बिछा हुआ है जिस पर हर तरफ हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं और उस पर एक गोल शामियाना छतरी की तरह साया किए हुए है। जैसे ही वजीर उस तरफ बढ़ा ऐसा मालूम हुआ जैसे लोग उसकी ताजीब में अदब के साथ झुक गए और कवालों ने मुबारक सलामत के गीत गाना शुरू किए। वजीर उनका सलाम लेता हुआ तख्त पर जा बैठा। फौरन बहुत सी असरफियाँ और जवाहरात उसके सर पर से निछावर किए गए। यह ख्वाब देखकर खुशी से उसकी आंखें खुल गई। फौरन अपनी बीवी को उठाया और अपना ख्वाब बयान किया। वजीर की बीवी को भी आज कई दिन के बाद मीठी नींद आई थी और उसने भी बड़ा अच्छा ख्वाब देखा था। शौहर का ख्वाब सुनकर बोली, इंशाअल्लाह जल्दी कोई अच्छी खबर सुनने में आएगी। अल्लाह का शुक्र है अब हमारे मुसीबत के दिन कट चुके हैं। इतने में रात आ गई। जब अंधेरा अच्छी तरह फैल गया तो यह दोनों गार से निकले कि अब किसी महफूज शहर में चलकर रहें। बाहर आकर लोगों की चहल पहल और खुशियों का पता चला और नई नई आवाज़ें कानों में आने लगी। जो लोग वजीर की तलाश में फिर रहे थे उधर भी आ निकले। वजीर की बीबी ने उनमें से एक से पूछा, यह कैसा शोर मचा हुआ है, लोग किस बात की खुशी मना रहे हैं। उसने सारा वाकया बयान किया। बीबी ने फौरन मियाँ को खबर की और अब यह दोनों किसी और शहर की तरफ जाने के बजाय खुद अपने ही शहर की तरफ लौट पड़े। जैसे ही लोगों ने वजीर आकिल को बादशाही महल की तरफ जाते देखा फौरन खुशी के नारे बुलंद किए और सुल्तान जिंदाबाद, बादशाह सलामत जिंदाबाद के शोर से आसमान सर पर उठा लिया। उनके इस तरह मिल जाने पर रियाया ने जी खोलकर जश्न मनाया। तमाम शहर में चरागां किया गया और कई दिन तक दावत होती रही। फ़कीरों और मिस्कीनों को खाने खिलाए गए और कपड़े और रुपया तकसीम किया गया। इसके बाद पूरे मुल्क में ऐलान हो गया कि अब से इस मुल्क के बादशाह सुल्तान आकिल हैं, सारी रियाया पर उनका हुक्म चलेगा। वजीर आकिल की इस कामयाबी ने सबको यकीन दिला दिया कि हमेशा सच्चाई और इंसाफ की जीत होती है और जो हाकिम रियाया के साथ जुल्म करते हैं अपने हक में कांटे बोते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर से ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ही न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक हमारी ये वीडियो बआसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।